Good morning, class, and welcome to the next lecture of financial markets. Okay. So, in the previous lecture, we went through some financial regulations like Basel 1 and Basel 2. Okay. So, we have already discussed some of the regulations in Basel 1. We will continue with Basel 2. So, we'll just go through some of the important regulations in Basel 2 first. So, starting in June 1999, the Basel Committee on Banking Supervision it released several proposals to reform the original 1988 Basel Accord. Okay, so there were some, like we have discussed before, there were some shortcomings in Basel 1. Okay, so to overcome some of those shortcomings, the Banking Supervision Committee, the Basel Committee on Banking Supervision, it released some proposals to reform the original accord, which was presented in 1988, and the new accord, which is called Basel II. Okay. It has some important pillars. So the first pillar, Pillar 1, links capital requirements for large, internationally active banks more closely to actual risk of three types: market risk, credit risk, and operational risk. It does so by specifying many more categories of assets with different risk weights in its standardized approach. So Basel II actually identified more categories of risk weighted assets, okay, as compared to Basel 1. Alternatively, it allows sophisticated banks to pursue an internal ratings based approach that permits banks to use their own model of credit risk. So Basel II gives more flexibility to banks. So basically, they can come up with their own models of risk management. Okay. So they can come with their own methods of internal controls and their own models of risk management. तो दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम बेसल वन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बैंक्स को थोड़ा और एम्पावर कर दिया गया कि वो अपने हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट करें. ठीक है. पिलर 2 फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग द सुपरवाइजरी प्रोसेस, particularly in assessing the quality of risk management in banking institutions and evaluating whether these institutions have adequate procedures to determine how much capital they need. So at the same time Basel 2 ने बैंक्स को थोड़ा सा और फ्रीडम दे दी, थोड़ी और ऑटोनमी दे दी है कि दे कैन कम अप विद देयर ओन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स. बट एट द सेम टाइम बेसल 2 हैज़ मेड श्योर कि जो सुपरविजरी प्रोसेस है, ठीक है, जो सुपरविजरी प्रोसेस हमने बात की थी कि बैंक्स में ऑन साइट विजिट्स होते हैं, अ टीम ऑफ पीपल विल परफॉर्म्स ऑन साइट विजिट्स, और इन ऑन साइट विजिट्स का पर्पज़ यही होता है टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द बैंक्स, ठीक, टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द बैंक. ठीक है. सो बेसल 2 ने ये जो सुपरवाइजरी प्रोसेस है इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू बेसल 2 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्ट्रेंथन द सुपरवाइजरी प्रोसेस, यानी कि सुपरवाइजरी प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, particularly in assessing the quality of risk management in banking institutions and evaluating whether these. ठीक है. So जो procedures या जो process यूज़ होता था assess the quality of risk management in banking institutions and evaluating whether these institutions have adequate procedures to determine how much capital they need. ठीक है. जो process यूज़ होता था उस process को और strengthen किया जाए. ठीक है. तो supervisory process को Basel 2 ने और strengthen किया है. And उसका purpose ये to make sure that the institutions have adequate procedures to determine how much capital they need. So उसके बाद pillar 3 पे आते हैं, it focuses on improving market discipline through increased disclosure of details. ठीक है. So Basel 2 कहता है we need to focus on increased disclosure. हमने disclosure की बात की थी. Banks need to disclose all of their liabilities. ठीक है. Banks अगर कुछ छुपाते हैं तो this can be very dangerous. Yeah, it can be very harmful for the investors and also for people who have deposited their money in the banks. तो disclosure requirement का purpose ये होता है to provide more information to investors and to people who want to become customers of the bank.
सो पिलर 3 फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि पिलर 3 फोकस करा ऑन इंक्रीजिंग डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स अबाउट बैंक्स क्रेडिट एक्सपोजर्स, ठीक है, बैंक के क्रेडिट एक्सपोजर्स के बारे में जो डिस्क्लोजर्स हैं वो इंक्रीज़ किए जाएँ, ठीक है। सिमिलरली उसके कैपिटल के बारे में जो डिस्क्लोजर्स हैं वो इंक्रीज़, यानी कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट एक्सपोजर्स एंड कैपिटल. Although Basel II makes great strides towards limiting excessive risk taking by internationally active banking institutions, it has greatly increased the complexity of the accord. ठीक है, तो जो बेसल 1 का पर्पस था वही बेसल 2 का पर्पस है, ठीक है. बट थिंग इज बेसल 2 जो है इट इज़ कैन से वन स्टेप अहेड इन मेकिंग श्योर कि बैंक्स डू नॉट make sure that banks do not engage in excessive risk taking. ठीक है, लेकिन ये अकॉर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी. द डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द ओरिजिनल बेसल अकॉर्ड वाज 26 पेजेस while the final draft of बेसल 2 exceeded 500 पेज. ठीक है, बेसल 2 का जो अकॉर्ड है इट्स लेंदी है और ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, द ओरिजिनल टाइम टेबल कॉल्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द फाइनल राउंड ऑफ कंसल्टेशन बाय द एंड ऑफ 2001 with the new rules taking effect by 2004. However, criticism from banks, trade associations, and national regulators led to several postponements. The final draft was not published until 2004, and Basel II started to be implemented at the beginning of 2008 by European banks. United States banks submitted plans for compliance with Basel II in 2008, but full implementation did not occur until 2009. Only the dozen or so largest US banks are subject to Basel II. सो बेसल 2 की जो है बेसिकली इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बेसल 2 टू कम इनटू इफेक्ट. ठीक है, जो फाइनल ड्राफ्ट था इट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 2004. देयर वर सर्टेन डिलेज बिकॉज बेसल 2 मेट अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन. ठीक है, एंड इट वाज फाइनली इम्प्लीमेंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ 2008 बाय यूरोपियन बैंक्स. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो बैंक्स थे दे इम्प्लीमेंटेड दिस लेटर ऑन इन 2009. ठीक है, बट स्टिल बहुत सारे बैंक्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया यूएस. ठीक है, बेसल 2 के भी काफ़ी क्रिटिसिज्म है. ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म ये इट्स कॉम्प्लेक्सिटी कुड मेक इट अनवर्केबल. ठीक है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ डिसएडवांटेज टू बैंक्स. सेकंड, रिस्क वेट्स इन द स्टैंडर्डाइज अप्रोच आर हैवली रिलायंट ऑन क्रेडिट रेटिंग्स. जो रिस्क वेट्स यूज़ किए बेसल 2 में दे आर वेरी मच रिलायंट ऑन क्रेडिट रेटिंग्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती हैं. बेसिकली किसी भी बैंक की डेट होती है, ठीक है, इसको रेटिंग दी जाती है. ठीक है, जिस तरह बॉन्ड्स की रेटिंग होती है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा AAA बॉन्ड होता है, AA बॉन्ड है. ठीक है, दीज आर बेसिकली द क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, तो इन रेटिंग से पढ़ के आप बता सकते हैं कि हाउ रिस्की द बॉन्ड इज़. ठीक है, तो रेटिंग्स बताती हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट the owners of the bond will default on the payments of the bond. ठीक है, इसी तरह दूसरी तरह के लोन्स होते हैं या दूसरी तरह का जो क्रेडिट होता है उसकी भी क्रेडिट रेटिंग्स की जाती हैं. ठीक है, क्रेडिट रेटिंग्स का अगेन पर्पस ये होता है टू इन्फॉर्म पीपल हाउ रिस्की दोज टाइप्स ऑफ क्रेडिट आर. ठीक है, अगर वो रेटिंग लो होगी दैट मीन्स देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. ठीक है, अगर रेटिंग हाई होगी दैट मीन्स देयर इज़ अ लोअर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. Since these credit ratings have proved to be unreliable on subprime mortgage products during the recent financial crisis, there are serious doubts that the standardized approach using credit ratings will produce reliable risk weights. ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्रेडिट रेटिंग्स प्रपोज की गई थी बाय बेसल 2, they proved to be unreliable during the subprime mortgage crisis of 2008 and 2009. ठीक है, 2008-2009 it is known as a period of financial crisis. ठीक है, so this financial crisis was basically a large part of this financial crisis was because of the subprime mortgage crisis. Subprime mortgage crisis basically refers to कि मार्केट में सबप्राइम मॉर्गेजेस की ट्रेडिंग बहुत हुई है. ठीक है, they were bought and sold. Subprime mortgages are basically highly risky types of mortgages.
So there are serious doubts that a standardized approach using credit ratings will produce reliable risk weights. ठीक है, तो ये जो risk weights provide किए गए थे, they were not very successful in the year 2008-2009, and there are doubts कि in future ये successful होंगे या नहीं. Basel II is very pro-cyclical, that is, it demands that banks hold less capital when times are good, but more when times are bad. Thereby, so basically, Basel II demand ये कर रहा है कि banks hold less capital when times are good. ठीक है, जब financial markets are performing well, banks are doing good business. So during those times, banks are required to hold less capital. But when times are bad, जब financial markets are not performing well, the economy is not doing well, और जो banks का business है it's suffering, तो banks are required to hold higher levels of capital. ठीक है, because probability of default और जो losses की probability होती है for different classes of assets, it actually rises during bad times. ठीक है, bad times के दौरान यानी ये बुरे times के दौरान जो probability of default होती है वो actually increase कर जाती है. ठीक है, so इसी टाइम पे जो कैपिटल है वो भी कम हो जाता है बैंक से. ठीक है, बिकॉज banks are not able to collect many of their receivables. ठीक है, तो उसको पूरा करने के देन दे विल जो है ना दे विल बी यूजिंग जो उन्होंने बैकअप कैपिटल रखा हुआ, जो रिजर्व में पैसे रखे हुए, दे विल बी यूजिंग दोस टू मेक इवन मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, ताकि वो जो अपना रिसीवेबल्स जो उनको नहीं मिल रहा, इससे जो उन्हें नुकसान हो रहा है, उसे पूरा कर सकें. सो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान नोट किया गया था कि दिस वाज अ सीरियस कंसर्न. ठीक है, यानी कि बैंक्स व्हेन दे वर नॉट डूइंग वेल, व्हेन दे वर एक्सपीरियंसिंग लॉसेस, तो उनका कैपिटल भी कम हो रहा था. सो दैट इज़ अ मेजर वीकनेस ऑफ बेसल II. ठीक है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो कहता है कि बैड टाइम्स में ज़्यादा कैपिटल रखें, गुड टाइम्स में बेशक कम रखें. सो दैट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल recommendation. So next I would like you to read through, मैंने आपको एक रीडिंग दी थी. ठीक है, इट्स ऑन पेज 266 आई बिलीव. 266 पे एक रीडिंग है, मार्केट टू मार्केट अकाउंटिंग एंड द सब प्राइम फाइनेंशियल प्लान्स. ठीक है, सो आई विल जस्ट गिव यू फ्यू मिनट्स टू गो थ्रू दिस रीडिंग. अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो गुड इनफ, अदरवाइज आई विल जस्ट गिव यू फ्यू मोर मिनट्स टू रीड इट.
Okay, so the controversy over market-to-market accounting has made accounting a hot topic. Market-to-market accounting was standard practice in the U.S. accounting industry in 1993. The rationale behind market-to-market accounting is that market prices provide the best basis for estimating the true value of assets and hence capital in the firm. Before mark-to-market accounting, firms relied on traditional historical basis in which the value of an asset was set at its initial purchase price. The problem with historical cost accounting is that fluctuations in the value of assets and liabilities because of changes in interest rates or default are not reflected in the calculation of firm's capital, equity capital. Yet changes in market value of assets and liabilities and hence changes in market value of equity capital are what indicates if a firm is in good shape or alternatively if it is getting into trouble and may therefore be more susceptible to moral hazard. तो मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में वी ऑल्सो कॉल इट फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग भी कहा जाता है इसको। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट at its fair market value. ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, सो लेट्स से आपने एक बिल्डिंग ख़रीदी है एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है 200,000, ठीक है, 2 लाख रुपए। ठीक है, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट का कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इन अकाउंटिंग इज़ कि बिकॉज आपने लेट्स से आपने बिल्डिंग 5 साल पहले ख़रीदी थी, ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यू शुड रिकॉर्ड this building as you should record the value of this building as 200,000 on the balance sheet। बट हो क्या रहा है, 5 साल के बाद बिल्डिंग की वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है, ऐसा नहीं है। 5 साल पहले जो बिल्डिंग की वैल्यू थी इट विल नॉट बी द सेम वैल्यू आफ्टर 5 years, ठीक है। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग ये कहता है कि वी शुड बैलेंस शीट पे जो वैल्यू है बिल्डिंग की, ठीक है, द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ the asset is the existing value of the building on the balance sheet, it should reflect the market value at that time। तो इसी तरह कुछ एसेट्स होते हैं लाइक फ्यूचर्स हैं, ठीक है। अगर आपने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है फॉर एग्जांपल $4.5 का, तो लेट्स से you want to short a future, ठीक है, और आपका you have bought that contract for $4.50, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर लेट्स से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है टू $4.55, ठीक है ना, पहले 4.50 थी, अब उस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज होकर 4.55 होगी, ठीक है। तो जिस बंदे ने उस पर शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, आई होप यू नो व्हाट दैट इज। शॉर्ट पोजीशन मीन्स यू आर सेलिंग दैट एसेट, ठीक है, लॉन्ग मीन्स यू आर बाइंग दैट। तो जिस बंदे ने शॉर्ट पोजीशन ली होगी इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसकी
इसकी जो वैल्यू है ऑफ दिस एसेट यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू विल एक्चुअली डिक्रीज फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो जिस बंदे ने शॉर्ट पोजीशन ली होगी ऑन दिस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, द वैल्यू ऑफ दिस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विल डिक्रीज फॉर दैट पर्सन, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी जिस बंदे ने लॉन्ग पोजीशन ली होगी उसके लिए द वैल्यू ऑफ दिस एसेट विल एक्चुअली इंक्रीज, ठीक है। यानी कि लॉन्ग पोजीशन वाले के लिए वैल्यू ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विल इंक्रीज, ठीक है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एसेट, I should not use the word asset for it, ठीक है। It's a different type of contract, ठीक है। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में होगा कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जैसे डिक्रीज करती जाएगी इट विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है ना। और जिस तरह फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी इट विल बी रिकॉर्डेड एज वेल, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। इसी तरह जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में जो स्टॉक्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है विद टाइम, ठीक है। 5 साल पहले जो आपने स्टॉक्स खरीदे थे 5 साल के बाद उन स्टॉक्स की जो मार्केट वैल्यू सेम नहीं रहेगी, ठीक है। सो एक चीज़ होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नॉट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इट्स द नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। इन शॉर्ट वी कॉल दैट NAV, ठीक है। तो जो NAV है, ठीक है, उसमें भी अगर NAV की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो वी शुड रिकॉर्ड दैट चेंज इन वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है विद टाइम सो वी शुड रिकॉर्ड दैट डिक्रीज़ या इंक्रीज़ इन वैल्यू, ठीक है। सो बेसिक आइडिया इज फिर वैल्यू अकाउंटिंग या मार्केट टू मार्केट अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू चेंज हुई है ओवर टाइम तो वी शुड रिकॉर्ड दैट चेंज टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट net asset value of the mutual fund, ठीक है। सो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपली ये कहता था कि हमने एक एसेट जिस वैल्यू पे ख़रीदा था हम उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है। बट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में दैट इज इट गिव्स अ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू एसेट्स। वो कहती है एसेट्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट बट दे शुड बी रिकॉर्डेड एट द फेयर मार्केट वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द ट्रू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की दी है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अगेन नॉट टाइप ऑफ एसेट, इट्स अ डेरिवेटिव, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स की भी एग्जांपल दी आपको, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स की अगर नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करे तो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड, so going back to our reading on page 266, market to market accounting, however, is subject to a major flaw. At times, markets stop working as occurred during the subprime financial crisis. ये subprime financial crisis में क्या होता है? It was a big financial crisis and financial markets जो थी they became stagnant. एक तरह से stagnant इस तरह से हो गई थी कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही थी financial markets में, ठीक है। liquidity कम हो गई थी, you could not sell a security, you could not even buy a security because buyers नहीं थे, तो sellers के लिए को buyers ही मिलते थे,
ठीक है. So that was a major problem during the financial crisis. So the price of an asset sold at a time of financial distress does not reflect its fundamental value. ठीक है. अगर if price of an asset decreases, ठीक है, because of changes in external condition, so that does not mean कि the fundamental value of that asset has changed. ठीक है ना. सर स्टॉक्स होते हैं, उनकी एक फंडामेंटल वैल्यू होती है. ठीक है. वो फंडामेंटल वैल्यू विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन पीपल्स इमोशंस और बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस. लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू ज़रूर चेंज होगी पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से. ठीक है. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर. ठीक है. किसी भी एसेट की वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं इन फाइनेंस. द बेसिक रूल इज़ वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर या द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश. स्टॉक्स का भी यही है. अगर आप स्टॉक वैल्यूएशन मॉडल्स को देखें तो उसमें देयर इज़ अ मॉडल जिसमें हम वी डिस्काउंट बैक ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज. ये हम हर सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. देन वी सेट दैट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द स्टॉक. So many people, particularly bankers, have criticized market-to-market accounting during the recent subprime financial crisis episode, claiming that it has been an important factor driving the crisis. They claim that seizing up of financial market has led to market prices being well below fundamental values. ठीक है. यानी कि वो क्रिटिक्स ये क्लेम कर रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो मार्केट वैल्यू थी बहुत सारे एसेट्स की, वो फंडामेंटल वैल्यू से बहुत नीचे गिर गई थी. ठीक है. विच इज़ नॉट एक्चुअली फेयर. सो मार्केट टू मार्केट अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल फर्म्स एसेट्स भी मार्क डाउन इन वैल्यू. ठीक है. अगर वैल्यू उनकी डिक्रीज हो रही है तो उसकी जो वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट इट शुड बी मार्क डाउन. दिस मार्कडाउन क्रिएट्स अ शॉर्टफॉल इन कैपिटल एंड दैट लीड्स टू अ कट बैक इन लेंडिंग. ठीक है. तो ज़ाहिर है जब मार्कडाउन होगी तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी. ठीक है. बैलेंस शीट पे एसेट की वैल्यू कम शो होगी. उसके नुकसान हैं. ठीक है. अगर किसी बैंक के पास कम एसेट्स हैं तो इट कैन नॉट गेट फर्दर लोन्स फ्रॉम अदर बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स. ठीक है. एक तरह का ये सर्कल है. द मार्कडाउन क्रिएट्स अ शॉर्टफॉल इन कैपिटल दैट लीड्स टू अ कट बैक इन लेंडिंग व्हिच कॉजेज अ फर्दर डिटोरिएशन इन asset prices which in turn causes a further cutback in lending. तो यानी कि अगर बैंक की एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो इट विल क्रिएट अ शॉर्टफॉल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर द बैंक विच विल आल्सो लीड टू अ कटबैक इन लेंडिंग टू कंज्यूमर्स. ठीक है. एंड आल्सो अ कटबैक इन लेंडिंग टू बैंक्स. ठीक है. विच इज़ जब यानी कि बैंक जब सफ़र कर रहा होता है इट नीड्स लोन्स. ठीक है. इट नीड्स अदर बैंक्स या सेंट्रल बैंक टू गिव इट लोन्स. ठीक है. लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सिचुएशन ऐसी होगी कि nobody is willing to lend money to it, so that creates a problem to it. So that creates a problem for the bank. So the resulting adverse feedback loop can then make the financial crisis even worse. Although the criticism of market-to-market accounting have some validity, some of the criticism by bankers is self-serving. The criticism was made only when asset values were falling, when market-to-market accounting was painting a bleak picture of banks' balance sheet as opposed to when asset prices were moving. ठीक. तो क्रिटिक्स ने ये कहा था कि अगर बैंक्स के एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो इट विल डिक्रीज ऑप्शन लेंडिंग ऑप्शंस फॉर द बैंक एंड आल्सो डिक्रीज लेंडिंग ऑप्शंस फॉर द कंज्यूमर्स. ठीक है. बट वो कह रहे हैं कि ये जो जिन लोगों ने ये शॉर्ट कमिंग प्रपोज किया ऑफ मार्केट अकाउंटिंग, दे हैव फेल्ड टू रियलाइज कि या दे हैव ओनली प्रेजेंटेड दिस आर्ग्यूमेंट एट अ टाइम व्हेन थिंग्स वर नॉट डूइंग वेल. ठीक है. यानी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट मार्केट टू मार्केट अकाउंटिंग इट वाज ओनली प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है. जब इकोनॉमी वाज डूइंग वेल व्हेन इट वाज मूविंग, नोबडी एक्चुअली सेड एनीथिंग अगेंस्ट द मार्केट टू मार्केट अकाउंटिंग. इसमें एक और रीडिंग आई वुड लाइक यू टू रीड दैट वन इज सिंपलर देन दिस.
and it's interesting one. It's a reading related to consumer protection. You can also read this. This is a comparison of banking structure in the United States and abroad. It's an interesting comparison. I can't find the page right now, but there is a reading related to consumer protection. वो मिली तो आप जरूर पढ़ें उसको. See if अच्छा, हम बेसल 1 और बेसल 2 को तो डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, देयर इज अनदर बेसल, इट्स बेसल 3. ठीक है, बेसल 2 के बाद बेसल 3 आया था, तो we'll also discuss that shortly. Okay, I'll give you the reading maybe later on in the next lecture. For now, we'll just quickly go through Basel 3. Okay, so Basel 3 came after Basel 2. Okay. So Basel 3 actually came in the aftermath of the financial crisis of 2008-2009. So this document is a summary of Basel 3, and I will also give you a link to this where you can download it from. Okay, Basel 3 was introduced after Basel 2 and after the financial crisis 2008 and 9. तो जो थोड़ी सी shortcomings थी Basel 2 में उनको ठीक किया गया. ठीक है, जो weaknesses थी Basel 2 में, and some new things were added. A key objective of revision in this document is to reduce excessive variability of risk-weighted assets. At the peak of global financial crisis, a wide range of stakeholders, including academics, analysts, and market participants, lost faith in banks' reported risk-weighted capital ratios. The committee's own empirical analysis highlighted a varying degree of variability in the calculation of RWA. तो बेसल 3 में उन्होंने क्या किया, जो एक्सेसिव वेरिएबिलिटी थी ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स उसको थोड़ा सा कम किया गया. ठीक है, तो बेसिकली दे हैव एडजस्टेड द वेट्स असाइंड टू रिस्क वेटेड एसेट्स. इसके अलावा प्रूडेंट एंड क्रेडिबल कैलकुलेशन ऑफ RWAs इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ द रिस्क वेटेड कैपिटल फ्रेमवर्क.
ठीक है, RW stands for risk weighted asset. Banks reported risk weighted capital ratios should be sufficiently transparent and comparable to permit shareholders to assess their risk profile. ठीक है, the revisions to regulatory framework set out in this document will help restore credibility in the calculation of RWAs by enhancing robustness and risk sensitivity of the standardized approaches for credit risk and operational risk, which will facilitate the compatibility of banks' capital ratios. ठीक है, तो this Basel III document is actually intended to enhance the robustness and risk sensitivity of the standardized approaches for credit risk and operational risk, which will facilitate comparability of banks' capital ratios. In finalizing these reforms, the committee was guided by three overarching principles. First, the committee is firmly committed to its mandate of strengthening the regulation, supervision, and practices of banks worldwide with the purpose of enhancing financial stability. A banking system that is resilient will be able to support real economy and contribute positively to sustainable economic growth over the medium term. Second, the committee actively seeks the views of stakeholders when developing standards for these reforms. The committee conducted an extensive consultation process with a wide range of stakeholders. While the revised framework will continue to permit the use of internally modeled approaches for certain risk categories, a jurisdiction which does not implement some or all of the internal modeled approaches but instead only implements the standardized approaches is compliant with Basel framework. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट कि हमने कहा था ना बेसल 2 में दे हैव गिवन बैंक्स लिटिल मोर फ्रीडम अबाउट हाउ दे कैन डू देयर ओन रिस्क मैनेजमेंट, यानी वो कौन से मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं टू डू रिस्क मैनेजमेंट. तो बेसल 3 कंटिन्यूज विद दैट, सो दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस वन. बट वो कह रहा है कि बैंक्स कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्डाइज अप्रोचेस एज कम्प्लाइड विद द बेसल फ्रेमवर्क. अगर वो अपने मॉडल्स नहीं यूज़ करना चाहते तो दे कैन ऑल्सो यूज़ स्टैंडर्डाइज अप्रोचेस. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली समरी ऑफ द बेसल 3 डॉक्यूमेंट. इट्स अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट विच डील्स विद इंडिविजुअल एक्सपोजर्स. ठीक है, एक्सपोजर्स टू सॉवरेन्स. ठीक है, और ये बता दें कि डिफरेंट एक्सपोजर्स के जो रिस्क वेट्स हैं वो क्या क्या हैं. ठीक है, AAA to AA माइनस है. ठीक है, दीज आर रेटिंग्स. ठीक है, रेटिंग्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है, क्रेडिट की रेटिंग्स है. तो इस क्रेडिट रेटिंग की जो डेट होगी या इस रेटिंग की का जो क्रेडिट होगा दैट विल बी असाइंड वेटेज ऑफ 0. इस रेटिंग का जो क्रेडिट होगा 20%. ठीक है, तो ये वेटेज थोड़ी सी चेंज किए गए हैं बेसल 3 में. ठीक है, एज कम्पेयर टू 1 and 2. सो यू कैन रीड द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, यू शुड बी एबल टू फाइंड इट ऑन गूगल पे. आप सर्च करें ना समरी ऑफ बेसल 3. ठीक है, आई थिंक जो पहला रिजल्ट आएगा उस वेबसाइट से यू कैन डाउनलोड. So this is the name of the website, BIS.org. I think the name of the document is not showing you on the screen over here. ठीक है, but you can just note down the name. The name of the document is https://www.bis.org. ठीक है, इसके अलावा एक और वेबसाइट है https://www.investopedia investopedia.com. terms/m/mark-to-market.asp. ठीक है, investopedia.com पे you can go and search mark to market, so you can find some good examples of mark to market, good explanation as well.
पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये डॉक्यूमेंट दोबारा दिखाने की कोशिश करूँगा. यू विल बी एबल टू सी द नेम ऑफ द वेबसाइट. Okay, so do read about Basel 3 on bis.org, and with that I will end the lecture, and until the next lecture, take care and goodbye.